Good morning, a very good morning from London, across the nations, across the globe. This is Dr. Sabitha Davidson, and we are the stars of David. The stars that shine bright in the sky, that shine bright in the sky at night. There's an importance of stars. The stars that shine bright in the sky, where do they get their light from? Do they have the light of their own? A star that shines bright in the black sky at night. Where does it get its light from? It does not have its own light. It only reflects the light that it receives from the sun. We are the stars of David. Whose light are we reflecting? Jesus. He's the Son of God. He carried and carries the glory of God. We have no glory in ourselves. We want to show the world that we have glory because we want to be praised. But let us praise the one who gave his life for us, like a lamb who was without sin. He uttered no word, and when ridiculed, he said, Father, forgive them. Are we his reflection that we can say to anyone who insults us, Father, forgive him? And then we have no bitterness towards him or her. Let us ask that compassion and humility of Jesus, the humility that Jesus wore, and God desires us to wear that humility because God humbled himself to become like one of us, but we do not desire to understand the other gender. The two genders, man and woman, God created. They never understood each other. To this day, after 6,000 plus years, there are a handful of people as male and female who would understand each other. There are many marriages who are only partnerships for the sake of children. But the couple doesn't understand each other. They are there for just the children. But there was no children in that relationship of Adam and Eve. God created Eve for Adam so that they can understand each other and love each other. And love is much more than physical relationship. Love is that love that Father does with us. Love is that love that Jesus showed towards his Father in this body. Obedience. Love is submission. Love is being humble and trying to understand the other person's perspective and bowing down. We need to bow down to each other in a relationship. The woman to a man and the man to a woman. Submission is not taking away the authority. As we read in Ephesians, it's beautiful Ephesians. It explains the relationship of a husband and a wife, and how a husband needs to be towards the wife, and how a wife needs to be towards the husband. Submissive to each other. Submission does not mean you take the authority from the authority. Jesus was submissive. Did he have authority? Oh, yes, he had authority. He has authority to judge the world. So let us be submissive. Let us learn to be humble as we will be given authority. It is written that you will be judges. Imagine if we are not right judges, we can
give a wrong judgment to an innocent person. We need to be just judges like God, like Jesus was a just judge. And he judged out of compassion and not out of the law of the Torah. So the law of Jesus is love. And today we have Bushra, Sister Bushra, who will be sharing what the Holy Spirit has put in her heart for today's declaration. And that declaration is just helping us to learn more about Jesus and be more like Jesus. And I will declare it, and then I will give it to my sister to continue. And it's from Philippians 2:7. He made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Hallelujah. Yes, Bushra, please continue. Shalom, shalom to everyone. Yes, we have to be humble like Christ, humility like Christ. Now, when I was praying today in the morning, and I was asking God to make me more humble, God revealed that something big is coming. Last month we were declaring the verses from the Word of God regarding the fear of God. लास्ट मंथ खुदा ने हमें अपने खौफ के बारे में सिखाया, उसके बताया कि व्हाई वी नीड टू फेयर गॉड, हमें क्यों खुदा के खौफ में रहना है, उसकी क्या बरकतें हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हर चीज खुदा ने हमें सिखाई. और इस महीने, दिस मंथ, गॉड हैज गिवन द वर्ड टू हिज डॉटर कि हमें ह्यूमिलिटी के बारे में सीखना है, हमने हम्बलनेस के बारे में सीखना है, हमने हम्बल होना है, हमने फरोतन होना है. व्हाई वी नीड टू हम्बल आवरसेल्फ, क्यों हमें हम्बल होना है, क्यों हमें फरोतन होना है, इसके पीछे बहुत खुदा का पर्पस है. खुदा का पर्पस है, क्यों खुदा चाहता है कि ये हम इस कलाम को डेली बेसिस पे डिक्लेयर कर रहे हैं. जो खुदा का रूह अपनी बेटी को बताता है वर्स, हम उस वर्स को डेली डिक्लेयर कर रहे हैं. अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब, वी आर डिक्लेयरिंग दीज वर्सेस जो ह्यूमिलिटी की है, कि खुदावन हमें हम्बल बनाए. डेली, टुडे इज 20th November 2024. 20 दिन से हम इसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं कि खुदावंद हमें हम्बल बनाए. एंड व्हेन आई वाज प्रेइंग टुडे इन द मॉर्निंग, और मैं यही कह रही कि खुदावंद मुझे हम्बल बनाए, तो खुदावंद ने ही रिवील्ड दैट समथिंग बिग इज कमिंग. कुछ बहुत बड़ा आने वाला है जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों में. खुदावंद हमारी जिंदगियों में हमारे स्पिरिचुअल लेवल को, क्या पता खुदा इंक्रीज करना चाहता हो, क्या पता Yes. किसी को खुदावंद प्रमोशन देना चाहता हो, क्या Yes. पता खुदा किसी को फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देना चाहता हो, Yes. किसी को मैरिटल ब्रेक थ्रू Yes. मिलने वाला हो, किसी को प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू मिलने वाला हो, किसी को Yes. एजुकेशनल ब्रेक थ्रू, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू, Yes. बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है हर एक की जिंदगी में. Yes. जिसके लिए जिसके लिए खुदा हमें तैयार कर रहा है, खुदा हमें तैयार कर रहा है, क्योंकि द हायर वी गो, जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं, द हायर द प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्राइड इन अस, ज्यादा से ज्यादा Yes. हमें चांसेस होते हैं कि हम प्राइडफुल हो जाएं, Yes. हमें गुरूर आ जाए, हमें घमंड आ जाए, क्योंकि हमें एक पोजीशन मिलती है. और हम ये Hmm. इंसान होते हुए ये चीज सोचते हैं कि हाँ, वी गेट दिस ब्लेसिंग, वी आर गेटिंग दीज ब्लेसिंग्स, हमें ये सब चीज जो मिल रही है और जो मिलती है वो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन एबिलिटी. ये हमें Hmm. हमारी एबिलिटी की वजह से मिली है, बिकॉज वी आर एबल. और Hmm. नॉर्मली हम अक्सर एक बात कहते हैं, आई डिजर्व इट. किसी का Hmm. अक्सर हम एक नॉर्मली आजकल हम जैसे कमेंट अक्सर लोगों को करते हैं, किसी की सक्सेस होते हैं तो कहते हैं, हम कहते हैं वेल डिजर्व्ड सक्सेस, कि Hmm. आपको ये सक्सेस जो मिली, ये प्रमोशन जो मिला, यू डिजर्व इट. और जब हम ये सोचते हैं कि आई डिजर्व इट, आई Hmm. डिजर्व इट, तो उस पे क्या होता है, प्राइड हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है. प्राइड तो एक बिहेवियर है, इट्स अ बिहेवियर, एंड इट्स अ Yes. प्रोडक्ट ऑफ सिंफुल नेचर. वी Yes. ऑल इनहेरिटेड प्राइड, हमें सबको इनहेरिटेंस में मिला है प्राइड. जब Hmm. खुदा ने, व्हेन एडम एंड ईव वर इन द गार्डन ऑफ ईडन, खुदावन उनके पास आया और खुदावन ने कहा कि क्या तूने उस फल को खाया जो मैंने तुझे मना किया था खाने से. तो एडम ने सिंपली जवाब ये नहीं दिया, ही डिड नॉट आंसर यस आई एट इट, फॉरगिव मी लॉर्ड. उसने ये कहा कि मुझसे तो गलती नहीं हुई,
ये जो औरत तूने मुझे दी है ना, इसने मुझे फल खिलाया है। इट मीन्स ही ब्लेम्ड गॉड। और उसने अपने आप को परफेक्ट जाना। उसने ये कहा मैंने नहीं गलती की, इस औरत ने मुझे बहकाया, इस औरत ने मुझे गलत खिलाया। प्राइड था नेचर में इंसान की, यानी कि Yes. he had this thing in his mind that I did not commit this sin, I did not make this mistake, I was forced to do this mistake, मुझे तो फोर्स किया इस औरत ने, तो मैंने खाया। और ये हमारी नेचर में एक है। वी ऑल थिंक दैट यस वी आर गुड, हम अच्छे हैं। जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि हम जिस हाल में भी होते हैं, हम इतनी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, वी आर इन अ कंडीशन कि हमें दूसरे की उस हालत को समझना चाहिए, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड। Sadly, we do not understand the feelings of other. We do not understand the problems of other because we have this thing in our nature. हमारी sinful nature में ये हमारे behavior का part है कि we think we are right and the others are wrong. इससे गलती हुई तो क्यों हुई, हमारी मजबूरी जो है वो ठीक है, दूसरे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। We have this nature, like Job suffered a lot. जैसे कि like sister was saying कि I will be tempted only if God, Satan cannot touch me. Sister Sabita was saying Satan cannot touch me. He can only touch me only if God allows him to touch me just to test me. तो यही बात है, जब खुदावन ने अयूब को टेस्ट किया, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स? वो यही कहता था यू डिजर्व इट। जो इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी मुश्किलें आ रही, तो तू डिजर्व करता था। कौन ऐसा है जो सादिक हो और मुश्किलें उठाए? ये हमारी नेचर का हिस्सा है ना, हम इंसान है। वी ऑल हैव द कैपेसिटी ऑफ प्राइड। हम सब में ये है बात कि हम किसी न किसी छोटी मोटी, कभी अपने लुक्स पर, समटाइम हम अपने टैलेंट्स पर, अपनी पोजीशंस पर, अपनी आवाज पर, अपने रोब पर, अपने दबदबे पे, अपने फाइनेंस पे हम में गुरूर घुमंड आ जाता है, एंड वी डू नॉट कंसिडर इट, वी डू नॉट कंसिडर इट कि ये हम क्या कर रहे हैं। और उस टाइम पर हाउ डू वी ट्रीट अदर्स? हम दूसरों को कैसा ट्रीट करते हैं? हम दूसरों को जो हमसे ऊंचे रुतबे पर होते हैं, like few days ago brother Josh was sharing the incidents when he somebody else had an accident and he was defending the person who got accident, and the person जिन्होंने एक्सीडेंट किया था, he was trying to टॉक टू हिम इन अ वेरी बैड वे। वो बहुत बुरे तरीके से इनसे बात कर, लेकिन जब उन्होंने अपने से भी किसी हाई प्रोफाइल लेडी को देखा, तो हिज टोन वाज चेंज्ड, और मैडम 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 फिर वो आ गए। और यही होता है, हम अपने से नीचों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अपने से ऊंचे लोगों को तो हम बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा उनको वैल्यू देते हैं, बहुत अच्छे उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनकी वर्ड्स को हम जो है रिगार्ड करते हैं। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर वर्ड्स एज वेल। बट व्हाट अबाउट द पीपल, व्हाट अबाउट द स्टाफ हु आर इन आवर कंट्रोल? जो हमारे कंट्रोल में होता है, हम उनको कैसे डील करते हैं, उन स्टाफ को, उन लोगों को, उन हेल्पर्स को? हाउ डू वी ट्रीट अदर्स? माई मदर ऑलवेज सेज अस कि जो है जो थोड़े से आपके जो हेल्पर्स होते हैं, आपकी हाउस हेल्प है, या जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का कर रहे हैं, उनसे जो, या जो लो प्रोफाइल लोग हैं या जिनके ऐसा नहीं है, उनसे आप हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से बात करें, बिकॉज वेन यू विल गिव रिस्पेक्ट टू देम दे विल गिव यू मोर रिस्पेक्ट। शी ऑलवेज टॉट अस टू गिव रिस्पेक्ट टू देम। वो हमेशा ये कहते थे कि बेशक ये कुछ नहीं है, बेशक ये स्वीपर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आयाज हैं, ऐसे डोमेस्टिक स्टाफ्स जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, तो हमेशा कहती थी इनसे भी रिस्पेक्ट से बात करें आप, क्योंकि अच्छे लोगों से तो, जो पढ़े लिखे लोगों से तो हम रिस्पेक्ट से बात करते, दे नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्फ, दे नो कि हमें किस तरीके से अपनी रिस्पेक्ट करवानी है। हम उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, वो हमें अच्छे तरीके से ही जवाब देंगे। अगर हम नहीं भी करेंगे तो उनको पता है कि ये क्या है, लेकिन अगर जिस इनसे हम नहीं करेंगे तो दे विल बी ऑफेंडेड। तो आप इनसे अच्छे तरीके से बात करें, इनसे प्यार से बात करें। और यही होता है कि जब हमारे पास एक पोजीशन आ जाती है, एक प्रमोशन, जैसे कि लाइक इन द कमिंग डेज वी आर गोइंग टू हैव प्रमोशंस। किसी भी तरीके से ब्रेक थ्रू हमारी जिंदगी में खुदा लाना चाहता है, खुदा लाना चाहता है टू द मेंबर्स ऑफ एसओडी, टू द पीपल हु आर वॉचिंग ऑनलाइन, या जो आगे देखेंगे।
जब जिंदगी में हमारी काम होगा, ह्यूज मिरेकल इज गोइंग टू कम इन आवर लाइफ, जब हमारी लाइफ Amen. में ये काम आएगा। आमेन। तो खुदा उसके लिए हमें प्रिपेयर कर रहा है। तो उस टाइम हमारा एटीट्यूड क्या होगा, उस टाइम हमारी नेचर क्या होगी, उस टाइम हम क्या करते हैं? क्या हम उस टाइम दूसरों के साथ इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं कि हम एक मकाम पर आ गए, वी डिजर्व इट, वी डिजर्व इट। एक मैं खुदा के खादमा की बात सुन रही थी, और उन्होंने बताया, उनका मैसेज देख रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक औरत थी जिसको जो है अपनी एक बुक पे या किसी एक चीज पे उसको जो है अवार्ड मिला। जब अवार्ड मिला तो उसको मिला कि बेस्ट राइटर का अवार्ड, एंड व्हेन शी गॉट द अवार्ड, और उसको जब वो बुलाया स्टेज पर, तो स्टेज पे जाके उसके आगे माइक किया कि आप भी कुछ कहें। और उसने वहां खड़े होकर क्या कहना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, टू गॉड बी द ग्लोरी, टू गॉड बी द ग्लोरी। उसने ये टू गॉड बी द ग्लोरी के सारा जलाल खुदा को मिले, और ये कहने के बाद उसने कहा थैंक यू, और वो उतर गई Amen. स्टेज से। Amen. तो दिस वॉज द एटीट्यूड ऑफ द लेडी। तो वो खुदा की खातमा जॉयस मायर का मैसेज थी, तो वो जॉयस मायर कहती कि वो बिल्कुल उसने ठीक कहा कि मेरी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं मुझे ये अवार्ड मिला, ये मुझे अवार्ड जो है वो खुदा की काबिलियत की वजह से मिला है। Mm. तो एक यही बात है। क्या हम यही सोचते हैं कि हमें जो खुदा ने हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स लाया, तो मतलब कि या हमें ब्रेक थ्रू मिल गया तो हमें हमारी काबिलियत की वजह से मिला है, या हमें इसलिए मिला है कि गॉड इज ग्रेशियस, खुदावन का फजल है हम पर। लेट्स डिक्लेयर टुडेज वर्स, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 7। He made himself nothing by taking the very nature of a servant. Mm. सर्वेंट की नेचर, बीइंग मेड इन ह्यूमन लाइकनेस। Mm. उर्दू में देखे तो लिखा है उसने अपने आप को खाली कर दिया, खाली कर दिया। क्या? खुदा के हाथ में तो सब चीजें थी। खुदा इंसान को किसी भी तरीके से सिखा सकता था। जब इंसान गुनाह कर रहा था, यीशु के आने से पहले भी तो खुदा कलाम करता था, इंसान को बताता था, इंसान को करता था। क्या खुदा के दिल में आया, क्या क्यों खुदा यीशु को भेजा, क्यों खुदा एक इंसान का रूप लेकर आया, क्यों खुदा एक उस रूप में आया जो बहुत ही एक वो था। और खुदावन यीशु जब दुनिया में आया, खुदावन यीशु जब दुनिया में आया तो उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने अपने आप को खुदा नहीं की तरह ही ट्रीटमेंट लिया, खुदा की तरह ही नहीं उसने वो प्रोटोकॉल्स लिए। वेयर वॉज ही बॉर्न? कहाँ? जहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। वो उसने अपने आप को इतना हम्बल कर दिया, इतना हम्बल कर दिया अपने आप को कि वो कहाँ पैदा हुआ। और यही नहीं, आगे भी हम देखते हैं उसने खादिम की सूरत इख्तियार की, खादिम की सूरत इख्तियार की। ही सर्व्ड अदर्स। और रहते हुए हम देखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों के पैर धोए और कहा जब मुझ उस्ताद ने ऐसा किया तो तुम पे भी फर्ज है कि तुम भी ऐसा करो। खुदावन यीशु ने हर चीज को, अथॉरिटी को अपने हाथ में नहीं ले लिया, अपने कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा, जैसा कलाम फरमाता है। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। क्या? क्या हम इंसान होते हुए इस तरीके से कर रहे होते हैं? हमें एक पोजीशन, एक रुतबा मिल जाता है, हम कैसा बिहेवियर करते हैं? क्या यीशु ने नफरत करी उन लोगों से, उन लोगों से नफरत करी कि जो उस बीमारियों में मुब्तला थे, गुनाह में थे? कल ही हमने, जब हम डेक्लेरेशन कर रहे थे, तो कल हमने सुना कि क्या यीशु ने मरियम मगदलिनी को देख के उसकी लस्ट फुल नेचर हुई, उसके माइंड में ऐसे को ख्यालात आए। इंसान था, ही वॉज अ कंप्लीट मैन एंड कंप्लीट गॉड। क्या खुदा के यीशु के जहन में कोई ऐसे बुरे ख्यालात आए इंसान होते हुए? कोई भी नहीं। खुदावन ने कहा बेटी, यीशु ने भी तो एक जिस्म में रहते हुए, ही वॉज अ कंप्लीट मैन, हमें एक नमूना दिया कि किस तरीके से हमने करना है, किस तरीके से हमने दूसरों पर तरस खाना है, किस तरीके से दूसरों से हमने प्यार करना है, किस तरीके से हमने अपने आप को खाली करना है, किस तरीके से हमने खादिम की सूरत इख्तियार करनी है, किस तरीके से हमने ये सब कुछ करना है। उसने किस तरीके से अपने माइंड को चेंज किया, अपनी नेचर को चेंज किया। ही वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज पेरेंट्स। जो उसके दुनियावी माँ बाप थे उनके ताबे रहा। ही वॉज ओबीडियंट टू देम, ही वॉज ओबीडियंट टू देम, ताबे रहा। उसने अपनी अथॉरिटी को ये नहीं कहा कि नहीं मैं तुम्हारा खुदा हूँ, डोंट गिव मी एनी ऑर्डर, डोंट टीच मी
हाउ टू डू और व्हाट टू डू। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, उनके ताबे रहा। और अपनी 3 साढ़े 3 साल की मिनिस्ट्री में भी हम देखते हैं, ही वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड द फादर। कोई उसने ऐसा काम नहीं किया जिससे में रहते हुए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बाप आसमानी को या पाक रूह को रंजीदा किया। नो, ही डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। उसने अपने आप को हम्बल किया। और जब उसने सलीब सही, तो उस टाइम पर ही एक्सचेंज्ड आवर नेचर विद हिज नेचर। उसने अपनी नेचर को हमारी नेचर के साथ तब्दील किया। हमारी अब जो नेचर है वो हम खुदावन में है। वी हैव न्यू आइडेंटिटी। अब हमारी एक न्यू आइडेंटिटी है, हमारा एक नया नाम है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई, हम नए हो गए हैं। हम नए हो गए हैं, और जब हम नए हो गए हैं, देन वी हैव टू बी हम्बल लाइक हिम। वी हैव टू बी हम्बल लाइक हिम। कैसे हम हम्बल हो सकते हैं? कैसे हम हम्बलनेस ला सकते हैं अपनी जिंदगी में? आजिज बन सकते हैं, फरोतन बन सकते हैं। एक दुनियावी मिसाल है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और हम्म। बाइबल में भी हम देखते हैं, प्रोवर्ब्स में लिखा है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। इट मीन्स दैट वी हैव टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज जो कि अच्छे हैं, जो हमारी हम्म। बुरी आदतों को चेंज करके अच्छा बना दे। कैसे हम हम्बल बन सकते हैं? जब हम उस शख्स के साथ रहेंगे जो खुद बहुत हम्बल था। हम्म। when we will walk with the person who was the most humble man on the face of the earth, हम्म। and that is one and only Jesus Christ। जब हम Amen. यीशु के साथ चलेंगे, जब हम यीशु के साथ चलते रहेंगे, हम जब हम्म। दिन में सबसे पहले उसको उससे बात करेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो उसकी नेचर ऑटोमेटिकली हमारी नेचर भी होती जाएगी वैसे। हमारी आदतें भी तब्दील होके वैसी बनती जाएंगी। वी विल बी हम्म। हम्बल लाइक हम्म। क्राइस्ट। वी विल हैव द ह्यूमिलिटी लाइक क्राइस्ट। जब हम हम्म। उसके साथ साथ चलेंगे, उसके साथ रहेंगे, उससे बात करेंगे, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, तो हमारी नेचर भी तब्दील हो जाएगी। हम्म। हमारी में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे जो उसकी लाइफ में थे। हम्म। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ टिल डेथ। वो मौत तक अपने आप को उसने समय बरता रखा, हम्बल रखा इतना। हम्म। तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, हम भी उसी तरीके की हम्बलनेस हमारी लाइफ में आ जाएगी। हम्म। जब मैं कराची में थी, मैं स्कूल में टीच करती थी, तो वहाँ हमारी एक होती थी हेड, और हमारी एक होती थी सीनियर मिस्ट्रेस। तो सीनियर मिस्ट्रेस क्या करती थी, जब जब जो जो हेड्स आती थी ना, वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लग जाती थी। अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट हेड आई है तो सीनियर मिस्ट्रेस भी वैसा ही बिहेव करती। अच्छा, अगर हेड मिस्ट्रेस जो है बहुत पोलाइट आ गई है तो वो भी वैसा ही बिहेव करती। अगर हेड मिस्ट्रेस फ्रेंडली आ गई तो वैसा ही बिहेव करती। सो शी यूज टू चेंज हर नेचर अकॉर्डिंग टू हर बॉस। अपने बॉस के अकॉर्डिंगली अपनी नेचर को चेंज करती रहती थी। वाई? बिकॉज शी यूज टू बी विद हर फॉर द होल टाइम। वो पूरा टाइम उनके साथ रहती थी स्कूल में, तो वो उन्हीं की देखती थी कि हाँ ये इस तरीके के, तो वो भी ऐसे करती थी। तो सेम इज विद अस। जब हम व्हेन वी विल वॉक विद जीसस, व्हेन वी विल टॉक विद जीसस, व्हेन वी विल स्टे विद जीसस, तो हम्म। हमारी नेचर भी वैसी ही हो जाएगी। वी विल बी हम्म। हम वी विल बी यस। हम्बल। फिर हमें कोई दुख नहीं होगा कि इसने हमारी तारीफ नहीं की, इसने हमें प्रेज नहीं किया, इसने तो आज हमारे लिए हमें एक गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं किया, इसने तो हमारी पोस्ट पे एक लाइक नहीं किया, हमने पोस्ट की इसने सीन करके भी कोई कमेंट नहीं किया। हमें कुछ ऐसा दुख नहीं होगा, हमें हम्म। कुछ ऐसा दुख नहीं होगा, बिकॉज वी विल हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। वी विल हम्म। हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। जैसा कि यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता था, यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन लोग हैं। वो ये देखता था हाउ ही यूज टू बिहेव विद अदर्स। वो ये देखता था कि खुदाया इनको माफ कर, इनको माफ हम्म। कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से हम दूसरे से बिहेव करते हैं, इट शोज आवर पर्सनैलिटी। इट यस। शोज आवर पर्सनैलिटी कि हमारी नेचर क्या है। अगर हम बदतमीज हैं तो हम दूसरे से भी बदतमीजी से ही बात करेंगे, और हम्म। अगर हम पोलाइट नेचर के हैं, हम्बल हैं, तो हम दूसरे से हम्बली बात करेंगे।
हम्बली बात करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम एक बात जो हम लोग अक्सर करते हैं कि हम्बल होते हुए हम समझते हैं वी अंडर एस्टिमेट आवर सेल्स, वी अंडर एस्टिमेट आवर सेल्फ। कभी हम्म कभार हम ओवर एस्टिमेशन कर लेते हैं। ओवर एस्टिमेशन इज प्राइड। जैसे रोमन 12 में लिखा है कि कोई अपने आप को अंदाजे से ज्यादा ना बढ़ के करे, हम्म समझे, बल्कि जितने हैं हमें अपने आप को एक करेक्ट एस्टिमेशन में लाना है। ह्यूमिलिटी इज द करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ हु यस वी आर इन क्राइस्ट। करेक्ट एस्टिमेशन। कभी कभार हम इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि वी आर, हम कहते थे हम तो यूजलेस है। खुदाया हम तो यूजलेस, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। खुदाया हम तेरे लिए मुंह ही नहीं खोल सकते। खुदाया हम तो बात ही नहीं कर सकते। हम तो तेरी परस्तिश ही नहीं कर सकते। हम तो तेरे घर में आके कोई काम करने के लायक ही नहीं है। हम्म आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन चर्चेस कि जो क्या करते हैं, बाहर जो लोगों की जूतियां पड़ी होती हैं दे सेट देयर शूज, उन, उनको वो शूज को सेट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं चर्चेस में होते हैं जो ये करते हैं कि कोई आते हैं और उनको जगह नहीं मिलती तो उनकी जगह बना बना के दे रहे होते हैं कि आप यहाँ बैठ जाएं, आप यहाँ कर ले। कोई होते हैं कि जो माइक सेट कर रहे होते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो पीछे बैठ के साउंड सिस्टम को डील कर रहे होते हैं। दे आर सर्विंग द लॉर्ड। यस whatever they have यस in their lives, whatever the talents they डेफिनेटली have, उनको यूज कर रहे हैं। छोटा बड़ा कोई खुदा की नजर में नहीं है कि ये बड़ा काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है। यस्सु खादिम बन गया, उसने अपने खादिम शागिर्दों के पैर धो लिए। उसने कहा हम्म जब वो जो उस्ताद ने ऐसा किया है, मैंने खिदमत की है तुम्हारी, तो तुम भी करो। तुम भी हम्म करो। तुम हम्म भी ऐसी ही खिदमत करो। जैसे एक बच्चा होता है, खुदावन यीशु ने कहा आसमान की बादशाही बच्चों की मानद है, जो बच्चों की मानद कबूल नहीं करेगा। एक मैं देख रही थी पोस्ट सिस्टर ने फेसबुक पे लगाई, इट वाज सच अ क्यूट पोस्ट कि जिसमें बहुत सारे स्टैचूज हैं और वो एक दूसरे के जो ना दे kept their hand on the shoulders of the others। उन्होंने सबके एक दूसरे के शोल्डर्स पे जो ना हाथ रख रखे एक लाइन बनाई हुई है। तो पीछे एक छोटी बच्ची है, वो भी उनके शोल्डर पे हाथ रख के लाइन में खड़ी हो गई है। एंड दे आर ऑल स्टैचूज। क्योंकि उस बच्ची को नहीं पता कि ये स्टैचूज हैं और ये लाइन बना के खड़े हुए हैं, बट शी फॉलोड देम कि ये ऐसे खड़े, मैं भी ऐसे खड़ी हो जाती हूँ। सेम माइंडसेट गॉड रिक्वायर्स फ्रॉम अस। हम्म जो हम्म कलाम में जैसा लिखा है वैसा ही है। यीशु ने कह दिया है तो ऐसा ही है। खुदा ने कह दिया Amen. है तो दुनिया बन गई है। वी Amen. डोंट नीड टू वर्क ऑन इट कि बनी कैसे। उसके मुंह Mm, के अल्फाज से बन गई है, बन गई है दुनिया। उसने mm, कह दिया, हो गया है ऐसा। जब उसने कह दिया है तो हो गया है। लेवल ऑफ mm, फेथ, लेवल ऑफ फेथ ऑन एंड ऑफ, एंड वी ऑलवेज हियर अबाउट द लेवल ऑफ फेथ कि हमारा फेथ का लेवल कितना होना चाहिए। हमारा फेथ का लेवल कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि हमें डरना नहीं चाहिए, हम इब्लीस से ना डरे। हमारी विक्ट्री है। हमारे हाथ में डबल एजेड सॉर्ड है, उसके पास ही है जस्ट सिंगल एजेड सॉर्ड। ये बहुत दफा हम सुन चुके हैं और बहुत दफा बात हम कर चुके हैं कि हमारा फेथ का लेवल कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितनी ज्यादा mm, वो होनी चाहिए, और किस कदर हमें अपने आप को करना है क्राइस्ट लाइक ह्यूमिलिटी। क्राइस्ट mm, लाइक ह्यूमिलिटी, बिकॉज इट इज नेसेसरी। बहुत दफा अक्सर जो है ब्रदर जॉश को चांस जब मिलता है वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें सिस्टर सबिता को इनकरेज कर रहे हैं। हम इनकरेज करें कि वो खुदा का काम करिए। शी इज इन द लीड, शी इज इन द लीड। और यही होता है कि जब जो प्राइड फुल शख्स होता है वो किसी की तारीफ ही नहीं करता। उसको होता है मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे अच्छा है। वो कभी किसी को प्रेज नहीं करना पसंद करेगा, प्रेज नहीं करना पसंद करेगा। लेकिन दिस इज ह्यूमिलिटी, दिस इज ह्यूमिलिटी जो ये सिखाती है कि नहीं, इफ शी इज इन लीड तो शी नीड्स आवर प्रेयर्स। इफ शी इज इन लीड शी नीड्स आवर एप्रिसिएशन, शी नीड्स आवर encouragement, she needs our presence, she needs our presence, because she is leading us, she is leading us. Although I have seen her few days ago, there was no one in the meeting and she was all alone in the meeting, and she started the meeting and she went live and she was praying alone. She was alone because Holy Spirit was with her. This is the thing कि कोई हो कोई ना हो, वी ऑलवेज गो फॉर क्वांटिटी। हम क्वांटिटी के पीछे भागते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये ज्यादा 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 ज्यादा, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी चीजें हैं। हम नहीं देखते कि जो हमारे साथ है, जब यीशु हमारे साथ है, जब व्हेन द होली स्पिरिट इज विद अस, वी आर इन मेजॉरिटी। वी आर इन मेजॉरिटी व्हेन होली स्पिरिट इज oh विद अस। yes, oh yes, फिर हमें hallelujah. किसी, यस, फिर हमें किसी इंसान की नहीं जरूरत कि ये इंसान हमारे बारे में क्या कह रहा है।
ये इंसान हमारे लिए क्या सोच रहा है, ये इंसान हमें क्या कह रहा है। बिकॉज ओवर एस्टिमेशन इज प्राइड एंड अंडर एस्टिमेशन इज स्टुपिडिटी। अंडर हम्म एस्टिमेशन इज नॉट ह्यूमिलिटी। ये एक स्टुपिडिटी है कि हम सोचे कि नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते खुदाया तेरे लिए, हम तेरे घर में आके क्या कर सकते हैं। हम खुदा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा है कि जिनकी ड्यूटी होती है कि वो चर्च में खड़ो के सिर्फ हदिया लेते हैं, एंड हम्म दे डू इट। दिस इज अ वेरी स्मॉल वर्क। हम्म शूज करेक्ट करना स्मॉल वर्क है। कुछ लोग इवन ऐसे भी होते हैं इन होम बेस्ड चर्चेस, आई हैव सीन पीपल जो बिफोर प्रेयर, बिफोर संडे, before Sunday meeting, yeah, before every other prayers, they go to church and they clean the church. They हम्म clean the church. This is, and they nobody sees them. किस कहीं उनका नाम नहीं आता, कहीं कुछ नहीं होता, but they have this feeling that God put in my heart. God put it in my heart that I have to go and clean the house of God. हम्म Clean the house of the God. अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे वो अपने आप को, वो जो उनमें एबिलिटी है उसके मुताबिक यूज कर रहे हैं, अपने आप हम्म को अवेलेबल कर रहे हैं। God does not see our abilities. He just हम्म sees availability. कि are we available to God? oh Are yes we all available to God? We yes are no one. हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये खुदा है जो करता है, because we are बेशक empty vessels, empty vessels, and this is the work of God. He is our potter. oh दिस इज द yes वर्क ऑफ गॉड। वो हमें कैसे यूज करता है, वो हमें कैसे यूज करता है। किसी को बड़े मजमा में यूज करता है, किसी को पोशीदगी में बंद कमरे में हम्म वो घुटनों पे होके यूज करवाता है खुदा। हम्म हम्म आंसुओं के साथ खुदा यूज करवाता है किसी को। हम्म किसी की प्रेयर में खुदा ने ऐसा रखा होता है कि इंटरसेशन का गिफ्ट दिया होता है कि दे आर नॉट ऑन द स्टेज, दे आर नॉट ऑन द oh पुलपिट, yes दे आर वर्किंग बिहाइंड द स्टेज। और हम्म टुडे वी ऑल आर हियर। हम नहीं जानते कि बिहाइंड द स्टेज हमारे लिए किसने प्रेयर की है। oh दैट टुडे yes वी आर हियर, टुडे वी आर हियर, डेफिनेटली डेफिनेटली आवर पेरेंट्स। और किन्होंने किए, किस तरीके से किए, किसने हमारे लिए इंटरसीड किया है कि आज खुदा का कलाम बोल रहे हैं, आज खुदा के कलाम की बात शेयर कर रहे हैं। वी डोंट नो, whatever we have, whatever we have to do the correct estimation of ourselves. This is हम्म humility। हमें करेक्ट एस्टिमेशन करनी है अपने आप की कि यस लॉर्ड, दिस इज द थिंग, ये मेरा तोड़ा है, आपने मुझे दिया है, मैंने इसको यूज करना है। आप इसको हम्म यूज करें, आप इसको यूज करें। वी हैव टू मेक आवर सेल्फ अवेलेबल फॉर गॉड। हम्म अवेलेबल, हमें अपने आप को खुदा के लिए अवेलेबल करना है। जब हम अवेलेबल करते हैं तो ही वर्क्स, ही वर्क्स इन आवर लाइव्स, थ्रू आवर लाइव्स। कभी रुलाकर, आंखों में आंसू डालकर, दिल में दर्द डाल के लोगों के लिए दुआ करवाता है। कभी बात करके, कभी किस तरीके से खुदा का काम है। और ये खुदा ही जानता है कि किस तरीके से करना है। हम्म उसने खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। ही हम्म बी मेड इन ह्यूमन लाइकनेस, इंसानों की तरह हो गया। उसको भी भूख लगती थी। ही हम्म ऑल्सो हैड दीज फीलिंग्स, के वो भी रोया जब हम्म लाजर का हुआ। यस, ही उसने प्यार भी किया, उसको तकलीफ भी हुई। ही फेस्ड ऑल द थिंग्स, पूरी जो इंसान की, क्यों, ताकि हम ये ना कह सके खुदाया आपको तो पता ही नहीं है। हम इंसान है, हमें क्या क्या चीज सफर करनी पड़ती है, हम थकते भी हैं खुदाया, हमें भूख भी लगती है खुदाया, हमारी फीलिंग्स भी हैं, हमारे इमोशंस भी हैं। ही हैड ऑल दीज थिंग्स बट ही ओवरकम, वो ओवरकम हुआ। कैसे जिस्म की बातों पे गालिब आया खुदावन यीशु, हम्म किस तरीके से उसने फर्मा बरदारी करता रहा बाप की, फर्मा बरदारी करता रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, जो कि हम्म उस टाइम पर एक बहुत लानती मौत कंसीडर की जाती थी। हम अक्सर एक बात कहते हैं, नहीं नहीं खुदाया ऐसा ना हो, जैसे कि यूना के टाइम पर हुआ। व्हेन ही प्रोफेसाइज्ड ओवर नैनोवा, तो वो उसने कहा कि खुदाया अब तो मेरी, मैंने जब ये कहा तो तूने रहम दिला, तूने माफ कर दिया इनको, तो मेरी प्रोफेसी तो रॉन्ग हो गई, मेरी हम्म प्रोफेसी रॉन्ग हो गई। बिकॉज ही वांटेड इट कि मैंने जो बोल दिया, मैंने जो प्रोफेसी करी वो पूरी हो जाए। वो नहीं हम्म देख रहा था कि ये जिंदगियां बच रही हैं, ये तौबा कर रही हैं। मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस टू अस। हम कहते हैं जो हमने कह दिया ना वो हो जाए, नहीं होगा तो इसमें तो बड़ी हमारी इंसल्ट है, बड़ी हम्म इंसल्ट है हमारी। वी फील इंसल्ट, हम इंसल्ट फील करते हैं
क्या यीशु ने इंसल्ट फील की when he was on the cross? When he was on the cross, everybody was mocking. हर कोई मजाक उड़ा रहा था, ठट्टे कर रहे थे उसको. They ridiculed him. But what he said in reply, what was his reply? Father, forgive them. इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं. दिस इज ह्यूमिलिटी विच वी नीड टू हैव इन आवर लाइव्स. जब Hmm. हमारी जिंदगियों में हम अंदर अथॉरिटी होते हैं, तो हमें पता होता है कि किस तरीके से हमने, जो हमें ऑर्डर मिल गया है, हमें लॉ पास हो गया है, हमें ये चीज हो गई, हमें इसको फॉलो करना ही करना है, नहीं करेंगे तो मुश्किल आएगी. द सेम थिंग शुड बी एप्लीकेबल व्हेन वी गेट द अथॉरिटी. जब हमें अथॉरिटी मिले, जब हम उस मकाम पर आए, तो हमें भी यही चीज कंसिडर करनी है कि हाँ, हमें इस चीज को किस तरीके से रखना है, ताकि इट विल नॉट बी पेनफुल फॉर अदर्स. दूसरों के लिए ऐसा पेनफुल ना हो. और समटाइम्स इट हैपेंस कि लोग कहते हैं कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने भी तो तकलीफ और दुख सहा है ना, अब दूसरा भी सहे, इसको भी Hmm. पता चले. Hmm. इसको भी पता चले कि इस मकाम पर आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इस Hmm. मकाम पर आने के लिए कितना वो करना पड़ता है. वी डू नॉट कंसिडर देम एज ह्यूमन. हम उनको इंसान नहीं समझते, हम ये कहते हैं नहीं नहीं, ये भी ऐसे करें, अगर हमारे साथ बुरा होना, इनको भी इस मकाम पे ऐसे ही आना है. जबकि वही बात है, अगर हमें एक रास्ता पता चल चुका है, हमने तकलीफ उठा ली, तो हम दूसरों के लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर दें, एक स्मूथ वे कर दें. इफ वी Hmm. इफ वी गॉट अ स्ट्रिक्ट बॉस, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम भी एक स्ट्रिक्ट बॉस ही बन के दूसरों के लिए Hmm. पेश हो. हम एक Yes. अच्छे और एक हम्बल बॉस भी बन सकते हैं, लाइक जीसस. बेशक. लाइक जीसस, बेशक. whatever the blessing is going to come in our lives, जो भी ब्रेक थ्रू हमारी जिंदगियों में आ रहा है, उसके लिए हमें हर उस सेक्टर में हम्बलनेस चाहिए. वेदर इट्स अ स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू, वी नीड हम्बलनेस. वेदर इट्स अ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, वी नीड हम्बलनेस. वेदर Hmm. इट्स अ मैरिटल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू, वी नीड हम्बलनेस. Hmm. humbleness. We have to submit ourselves to others. हमें दूसरे के आगे Hmm. अपने आप को करना, वेदर लाइक हर रोज हम ऑन एंड ऑफ यही बात सीखते हैं कि हस्बैंड वाइफ को दूसरे के आगे दे शुड हैव सबमिसिव नेचर. हमारे में होनी है सबमिसिव नेचर. अनटिल अनलेस हम नहीं वो मकाम, वो चीज, वो ब्लेसिंग हासिल कर सकेंगे, वो खुदा की कुर्बत नहीं हासिल कर सकेंगे जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है, हमारा कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा एक आपस का ताल्लुक खत्म हो जाएगा. भाई, Hmm. आर देयर सो मेनी मेंटल इश्यूज आजकल? क्यों है? क्योंकि सबमिसिव नेचर नहीं है. सबमिसिव नेचर नहीं है. और आजकल एक बात बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन में बर्दाश्त नहीं है ना, ये इस Hmm. तरीके के कंट्रोल में नहीं आते, ये ऐसी अथॉरिटीज को नहीं समझते, ये बातों को नहीं मानते, इनको नहीं पता. हम पुराने लोग थे, पुराने लोगों ने रिश्ते निभा लिए, ये कर लिया. नो, द रूल इज सेम फॉर देम. Hmm. जो कल बात थी कलाम की, वो ही आज भी Oh, बात है yes. कलाम की. He changeth कलाम. not. He यस, changeth not. यस, यस, दिस इज द थिंग आई वाज अबाउट टू से. Praise God. कलाम नहीं बदला. कलाम नहीं बदला और ना ही बदलेगा. जहां Hmm. पहले यस खुदावंद ने कहा, आसमानी बाप ने कहा, मैं तलाक से बेजार हूँ, वो ही आज भी Hmm. बात है. वो ही Yes. आज भी बात है. तू अपनी जवानी की बीवी के साथ बेवफाई ना कर, यही बात है. Hmm. एंड इट विल Hmm. नेवर एवर चेंज. इट Never. विल नेवर एवर चेंज. वी हैव टू सबमिट आवरसेल्फ. हमें अपने आप को सबमिट करना है खुदा के कलाम के. हमें ताबे होना है कलाम के. कलाम को हमारे ताबे नहीं होना, हमें कलाम के Hmm. ताबे होना है. हमें हम्बल होना Hmm. है. वी हैव टू हम्बल आवरसेल्फ बिफोर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, दैट ही Hmm. may exalt us in due time. We Yes. all want exaltations, we all want breakthroughs, we all want blessings. The key to all these things is to humble ourselves, Hmm. because humility helps us to handle the promotions. It Hmm. helps us to handle the promotions. जो प्रमोशन, बड़ा काम खुदा हमारी जिंदगियों में करना चाहता है, उसके लिए Hmm. हम्बल होंगे, तभी हम उस चीज को लीड कर सकेंगे, तभी हम उस चीज को हैंडल कर सकेंगे, तभी हम उसमें उस तरीके से रह सकेंगे जैसा खुदावन चाहता है. तभी Hmm. हम रह सकेंगे. लेट्स प्रे.
आए हम दुआ करें कि खुदावंदा हमें हम्बल बनाए। Oh, Oh yes. Lord Oh, Jesus, we yes. humble ourselves, Yes. we humble ourselves before the Lord. Yes, Oh, Lord. thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father, Oh, for yes. your word. We praise you. We glorify your name. We Mm. magnify your name. We exalt you, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you, Lord Jesus. Mm. When you humble yourself, when you humble yourself, who are we? We are nothing. We are nothing. हम Mm. इस लायक नहीं है कि हम कोई गुरूर फखर घुमंड कर सके, बिकॉज वी आर नथिंग विदाउट यू लॉर्ड Oh, जीसस। yes. हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते, आपके रूह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं आसमानी बाप। हमें आपके रूह की जरूरत है। होली स्पिरिट वी नीड यू। हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ आप पर है। आपके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर नथिंग विदाउट यू लॉर्ड, एंड विद यू we are powerful. With you Mm. we have the authority. With you we are conqueror, more than conqueror। आप हमें Mm. पता से बढ़ के गलबा देते हैं खुदावंद। हम Mm. शुक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं Yes. खुदावंदा। हमें हम्बल करे, हमें हम्बल करे। आपका कलाम फरमाता है, जज नॉट दैट यू मे नॉट बी जज्ड। खुदावंदा Yes. हमारे अंदर से वो गुरूर, वो घुमंड, वो फखर जो जिसके बाइस हम दूसरों को जज करते हैं, जिसके बाइस हम दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, जिसके बाइस है खुदा हम अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते हैं खुदावंदा, ये Mm. बातें जाती रहें। और हमें है खुदावंद यीशु, हमें ओवर एस्टिमेशन से बचाएं, हमें अंडर एस्टिमेशन से बचाएं। हम ए प्यारे खुदा आपके कलाम के मुताबिक, आपके कलाम के Mm. मुताबिक अपने आप को वैसा ही जाने जैसा आप चाहते हैं। Yes. हमारी आइडेंटिटी खुदावंदा आप हैं। Yes. हमारे हमारी ए खुदावंद यीशु, हमारी अव्वलियत आप हैं। और Yes. जब हम आपके साथ हैं तो आप बादशाहों के बादशाह हैं। आप दुनिया को बनाने वाले, लेकिन आपने अपने आप को हम्बल कर दिया। आपने खादिम की सूरत इख्तियार की, आप इंसानों के मुशाबा हो गए। आपने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और आप बाप के फर्मा Mm. बरदार रहे। खुदावंद हमें बाप का फर्मा बरदार बनाए। होली स्पिरिट, मेक अस ओबीडिएंट टू फादर, मेक अस ओबीडिएंट टू योर वर्ड, and help us not to grieve you. Help us not to grieve you. Prepare all of us. Prepare all of us Yes. for the Yes, blessings Lord. जो आप देना चाहते हैं आने वाले दिनों में, जो आप एसओडी फैमिली को और भी बहुत सारी जिंदगियों में आप जो बरकत लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रिपेयर करें। मेक अस मोर हम्बल, मेक Mm. अस मोर हम्बल। हम एक दूसरे के ताबे रहें, हम एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार रहें। हम Mm. जमा होने से ऐ खुदावंदा बाज ना आए। हम ये ना सोचें हमें बहुत आता है, हमें सीखने की Yes. जरूरत है। हम सीखें, हम अपने आप को अवेलेबल करें सीखने के लिए। खुदावंद हमारे टाइम्स को, हमारे हर एक चीज को मैनेज आप करें। हमारे Mm. इंटरनेट कनेक्शंस को है खुदावंदा मैनेज करें, इनको हम आपके आगे देते हैं ताकि हम Mm. सीखें, हम एक रूह में होके सीखें और आपके नाम को जलाल मिले। हमने बड़ी बरकत दी यीशु के नाम से मांगा पाया, आमीन। Amen. 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 Oh, thank you, Father. Thank you, Heavenly Father. I praise you, Jesus. I praise you for your humility, for not giving in to your will, own will, the will of the flesh. I thank you for not giving in to the will of your own flesh. Had you given in to your own, the will of your own flesh, my flesh, my flesh that has a soul, that soul would never have been saved. The flesh still suffers at the at our own will, because we wish to follow our own will rather than the will of the Father, and therefore we do not get our blessings. And the blessings that people are looking for are not the blessings that you have chosen for us. The blessings that people look for and desire are so worthless. They are very expensive, but they are worthless because they are bought by money.
And none of the possessions that is of value in the sight of flesh goes inside the coffin with us. What goes inside with us? The fruits. The fruits. Was I a tree with fruits? Or was I a tree without fruit? That is what goes inside that box. And if our eyes close before going in that box, or for some who are not buried in a box, or some are just victims of fire and their body is burned and only ashes remain, before any of this, before the flesh comes to nothing, if there is not a single fruit on that tree, then it is mere wood, and a mere wood is only fuel to the lake of fire. A mere wood is only fuel to the lake of fire. And that is why God has called me to pray and intercede in Stars of David with all the other soldiers as we wage war against the enemy, and the enemy is no one but Satan. I thank God for the life of my sister Bushra, Father God. Thank you for the word that I heard and we heard, and all those who are listening and or will be listening. I pray that as her voice reaches out to many, it touches the hearts and not the ears. The word that touches the ear does not transform a person. I repeat, the word that touches the ear does not transform the mind, does not transform there is no transformation of the mind. And if there is no transformation of the mind, then our hearts remain same. When the word touches our heart, the transformation starts happening in the mind. And the scripture says to develop the mind of Christ. Nowhere have I read that it says develop the heart of Christ. It says have the understanding of the heart. Understanding of the heart. That means our hearts can understand, but we choose not to understand because we use our own mind and we do not wish to get it transformed and develop the mind of Christ. And the might of Christ is pure humility. And I love the one statement that Sister Bushra has mentioned, and I really, it touched my heart, that humility. What is humility? I used one word for. There are many words that can be used. We're all God gives us our words according to what the Spirit puts in our heart. And I said humility is an attitude of gratitude that came to my heart. But she said today that humility is correct estimation of our nature. What a beautiful depiction of humility, that we do not overestimate ourselves to become proud, and we do not underestimate ourselves, that we do not wish to perform for Him. That means we do not wish to use our talents for him because we think we are so lowly that we cannot offer Him anything. What a beautiful representation of humility. So although I'm leading, but does that mean that any of you who shares a word is less than what I am saying? No, because everyone has been given the Holy Spirit. And when I listen, I am not listening to a man or a woman. I'm listening what the Lord has for me. What the Lord has for me. What is the thing that I did not know? Because if I say I know everything, that means I become Jesus.
That means I've become Jesus. So now I'm one with God. And I'm not one with God because I sin every single day in this flesh, sometimes unknowingly, sometimes unintentionally, because we are birthed in sin. Jesus was not birthed in sin because he was seed of not the flesh, not of human desire, not of a woman's desire, not a man's desire, but the desire of the Father, the Creator. He was his seed, the seed of truth. This truth is what? The Holy Spirit. The Holy Spirit is the seed, the Spirit of truth. And that was the same spirit that was put inside Adam, the first Adam, when Adam was breathed into his nostrils the breath of life and he became a living soul. What was breathed into Adam? Lies. Was a spirit of lies breathed into Adam? No. It was the spirit of truth. But the spirit of truth that was breathed into Adam, it failed to understand his own mistake. His own mistake. He did not lie when he said, "You gave me this woman and she made me sin." He was absolutely right. No lies. No lies. But did he use his mind of understanding? Did he use his eyes of understanding? And I will continue and delve deeper into this moment when Adam and Eve sinned tomorrow, as we meet in the evening tomorrow and at 1:30 in UK and 6:30 in Pakistan. I will delve deeper into this mystery of the time when Adam and Eve sinned. And there is such a depth in it, that when my eyes were opened to it, I was awed with the depth that one moment has. Because everything starts from there. Everything starts from there. So tomorrow we will delve deeper into it. And today I thank God for his word. And as we close, I request Uncle David to please lead us in the Lord's Prayer, Aay Hamare Baap. And as we close, I thank our Father. I thank you, Jesus. And most of all, I say most of all, to the Holy Spirit, because that was the Spirit आए that हमारे was बाप put in तू Adam. जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जा को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर और हम आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से आपको बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। Amen. डॉक्टर, Amen. टाइम चेंज हो गया प्रेयर का? नहीं अंकल, मैंने एक्चुअली कल मेंशन किया था क्योंकि बुशरा वेनेसडे को देती हैं, तो सिर्फ वेनेसडेज को ना 8 बजे हम रखेंगे, क्योंकि वो बच्चों का स्कूल वगैरह होता है, तो फिर बच्चे, आपने देखा था लास्ट टाइम भी, वो गोद में आके बैठते हैं, रोते हैं, तो शी हैज डिफिकल्टी। तो 8 से 9 हम सिर्फ वेनेसडे को करेंगे एंड देन वी कंटिन्यू एट द सेम टाइम, जो कि मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था। आई थिंक आपने शायद वो पोस्ट ही देखी। तो लेकिन ये है कि थर्सडे और वेनेसडे को डिफरेंट टाइम है, बाकी 5 दिन 9 बजे है। सो थर्सडे को हम 1:30 बजे मिलेंगे यूके के, और वेनेसडे को हम 8 बजे, और बाकी दिनों में हम थर्सडे को कल ही है, इनका अपडेट भी होगा? हाँ जी, हाँ जी, टाइम पिछले हो सप्ताह गया भी 1:30 बजे था, थर्सडेज को है 1:30 वो बजे मैं। ही है जी। ओके, थैंक Right. थैंक Okay, everybody, thank you so much. Those who are watching online or will be, shalom, shalom, shalom. Okay, sis, Peace. thank you. God bless you. Thank you. Peace without understanding, I leave with you. That is the peace of Jesus, Yeshua, and he's coming soon. And we are preparing for a great, great welcome as we fly high to meet him.